Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem D, expression evaluation error, code forces round 742 division 2. Okay, so in this video firstly we will see what the question is saying, then I will generalize the question, and after that we will see the approach and code for this question. Okay, fine. Now let me read the question. On the board, Bob wrote n positive integers in base 10 with some s. Okay, so Bob wrote some n positive integers and all those are summing up to s. Okay, now Alice sees the board but accidentally interprets the numbers on the board as base 11 and adds them up. Okay, now Alice sees accidentally that board, okay, and Alice added those integers as base 11 integers. Okay, so what this means is, let's just understand this first. What numbers should Bob write on the board so Alice's sum is as large as possible? Okay, fine. तो ये हमारा क्वेश्चन था लाइक कि बॉब ने फर्स्टली n पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलरेडी कहीं बोर्ड पे लिख दिए, ओके, एंड उन सब का टोटल सम s है. नाउ एलिस आया, एलिस ने एक्सीडेंटली उस बोर्ड के जो नंबर्स हैं उनको एज बेस 11 इंटीजर्स ऐड किया. ओके, और हमें मेन हमारा जो एम है, वी हैव टू मैक्सिमाइज एलिस's सम. ओके, सो you can say that you have to find out n positive integers. Okay, you have to find out some n positive integers such that उनका टोटल सम जो है, उनका टोटल सम कितना हो, s के इक्वल. ओके, एंड ऑल दोज इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हो. लाइक मीन्स यू कांट गिव देम जीरो. ठीक है, मस्ट बी पॉजिटिव एंड सम अप टू s. एंड सेकेंड थिंग, उनका जो बेस 11 सम है, ओके, उनका जो बेस 11 सम है, इट मस्ट बी मैक्सिमम पॉसिबल. ओके, सो दिस इज आवर कंप्लीट मोटिव ऑफ द क्वेश्चन. फाइन. ओके, नाउ let's just see the constraints for this question, that our sum is summing up to 10 raised 9. Okay, but our n is quite small. Okay, like minimum of 100 and s, so you can say that maximum possible value of n is up to 100 only. Okay, minimum of 100 and s, so let's just say if s value is somewhat 1000, so n will be equals to obviously 100. Okay, and if s value is less than 100, like 99, so n will be obviously 99. Okay, so you can say that n is quite small, so we can think of some brute approach of finding all those positive integers. Okay, like हमें exactly करना क्या है, we have to find out n positive integers such that जो उनका बेस 11 सम है वो मैक्सिमाइज हो जाए. ओके, एंड सिंस n is quite small, that is equals to 100, so we can go for some brute approach. Till now we know this much only. Fine. Now we have to give output n positive integers. The number Bob should write on the board so Alice's sum is as large as possible. If there are multiple answers, you can print any of them. So second thing, we got to know that there are multiple possible answers. There can be multiple possible answers. Fine. Now let's just see some examples. Okay, so first example we have is 97 and 2. Okay, but before that let's just understand that what is summing of integers with base 11. Okay, so what is our particular aim? I am explaining this. Okay, जो हमारा पर्टिकुलर एम है कि हमें बेस 11 सम को कैसे मैक्सिमाइज करना है. तो लेट्स जस्ट से वी हैव अ इंटीजर, लेट्स जस्ट से 1000. ओके, मेरे पास एक 1000 इंटीजर. ठीक है, फॉर से ये मेरा s है अभी के लिए. फाइन. और मुझे इसको दो इंटीजर्स में, 2 जो है वो मेरा n है, इसको दो इंटीजर्स में स्प्लिट करना है सच दैट जब मैं उनको बेस 11 इंटीजर का सम करूं, ठीक है, इन दोनों इंटीजर्स का, वो मैक्सिमाइज हो जाए. ठीक है, तो अज्यूम इसके दो वेज हो सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट वे मैंने यहाँ पे लिखा दैट आई हैव स्प्लिटेड 1000 इनटू 2 वेज into 2 numbers. Okay,
दैट इज 900 एंड 100, इन दोनों का सम 1000 है और n की वैल्यू 2 है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, सेकेंड वे कैन बी आई कैन स्प्लिट दीज इंटीजर्स एज 990 एंड 10. ओके फाइन. अब अगर मुझे इन दोनों का 11 बेस इंटीजर में सम निकालना है, ठीक है, लाइक आई नीड टू सपोज दैट दीज इंटीजर्स आर बेस 11 इंटीजर्स और मुझे इनका सम निकालना है, तो मैं इनका सम कैसे निकालूंगा? आई विल सिंपली राइट इट एज लाइक, अगर मुझे इसका सम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 11 रेज 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 11 रेज 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 11 रेज 2 मल्टीप्लाई 9. ओके, प्लस 11 रेज 2 मल्टीप्लाई 1. आई एम नॉट राइटिंग दीज अगेन दीज थिंग्स फॉर 0, ठीक है. तो अगर मैं पूरा का पूरा कंक्लूड करूं तो मेरा इन दोनों नंबर्स का 11 बेस, एज्यूमिंग दैट दीज नंबर्स आर बेस 11 इंटीजर्स, इनका सम कितना हो जाएगा? 11 रेज 2 9 इंटू 11 रेज 2 प्लस 1 इंटू 11 रेज 2. फाइन. तो ये मेरा बेस 2 इंटीजर्स का सम है, बेस 11 इंटीजर्स का सम है. फाइन. ओके, अगर मैं सेम थिंग इसके लिए करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा ये देखते हैं. दिस विल बी इक्वल टू समथिंग लाइक 9 इंटू 11 रेज 2 प्लस 9 इंटू 11 रेज 1 प्लस 1 इंटू 11 रेज 1. ओके फाइन. so this will be something equals to like 9 into 10 11 raised 2 plus this will be 10 into 11 raised 1. okay, we can clearly see from here that ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से ज़्यादा है. ओके, अब ये क्यों ज़्यादा है ये भी हम एग्जैक्टली देख सकते हैं, बिकॉज जो 11 रेज 2 की वैल्यूज़ थी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूँ, ठीक है, वी कैन क्लियरली सी कि जो हम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली जो हम 11 बेस इंटीजर्स का एडिशन कर रहे हैं वो हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? जो भी मैक्सिमम लेफ्ट मोस्ट डिजिट थी, ठीक है, हम उनमें 11 की पावर रेज कर रहे हैं एग्जैक्टली फॉर एडिंग 11 बेस इंटीजर्स, है ना. तो जितनी भी लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज़ हैं उसमें अगर हम लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज़ की वैल्यूज़ बढ़ा देंगे, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट उस पर फोकस करना, ठीक है, कि अगर जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज़ हैं उसकी वैल्यू हम बढ़ा देंगे, दैट इज़ 9, ठीक है, और 1, तो 9 में भी 11 रेज 2 आएगा और 1 में भी 11 रेज 2 आएगा, तो हमारा जो टोटल सम है दैट विल इटसेल्फ इंक्रीजेस. ओके, तो हमारा मेन एम क्या है? जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स हैं, ठीक है, आफ्टर स्प्लिटिंग कंप्लीट सम इनटू n पॉजिटिव इंटीजर्स, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स हैं उनमें एग्जैक्टली मैक्सिमम वैल्यूज आए. ओके, तो काइंड ऑफ सपोज इफ आई एम स्प्लिटिंग 97, तो मैं इसको कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ? ये 2 डिजिट नंबर है. ओके, तो मैं इसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट कहाँ तक दे सकता हूँ? 10th प्लेस तक. ओके, लाइक ये 0th प्लेस, ये 10th प्लेस. ओके, तो मैं 10th प्लेस तक लेफ्ट मोस्ट डिजिट ले सकता हूँ. और लेफ्ट मोस्ट डिजिट 10th प्लेस तक लेने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे 7 दे दूँ और यहाँ पे 2 दे दूँ, तो टोटल सम 9 हो जाएगा, ठीक है, 7 2. और व्हाट आई कैन सिंपली डू इज, मैं यहाँ पे 1 दे दूँ और एग्जैक्टली अभी इसको 10 कर दूँ और बाकी जो बचा हुआ इसको 87 कर दूँ. अब व्हाई आई एम डूइंग दिस, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन सा नंबर है. यहाँ पे 2 और 7 होता अगर, तो ये सिंपली मेरा ऐड किस में होता? 2 इंटू 10 रेज 11 रेज 1 प्लस 7 इंटू 11 रेज 1. ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 11 रेज 1. अगर मैं इसको ऐसे लिखता 1, अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखता 10 और 87, तो वो मेरा सिंपली इक्वल्स टू क्या होता? 1 इंटू 11 रेज 1 प्लस 8 इंटू 11 रेज 1. ओके, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू दिस ओनली. ओके, तो इट डजेंट मैटर कि फर्स्ट प्लेस में कौन से डिजिट कहाँ पे आ रही है, बट जो उसका टोटल सम है दैट मस्ट बी मैक्सिमम.
ओके, तो जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस है वहां पे जो टोटल नंबर्स में जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और वो जो सम है वो किसके इक्वल हो सकता है, एट मोस्ट 9 के। ठीक है, जो मेन हमारे एस में जो डिजिट है उस प्लेस में। ठीक है, फाइन। नाउ फ्रॉम दिस यू कैन से कि अब मैं कोई एक ग्रीडी अप्रोच बना सकता हूँ। सपोज मैं कुछ एग्जांपल्स लेके तुम लोगों को बताऊं, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे 100 और 2 था, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 100 और 2 था, मुझे 2 नंबर में स्प्लिट करना है। व्हाट आई कैन सिंपली डू इज, सबसे पहला तुम बोलोगे कि इसमें मैं 0th 10th और 100 प्लेस तक डिजिट बना सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज मैंने अगर 100 प्लेस तक डिजिट बनाई, तो 100 प्लेस तक डिजिट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर ही 100 लेना पड़ेगा। बट अगर मैंने पहला नंबर 100 ले लिया तो मेरा सेकंड नंबर इसके बाद क्या बनेगा, s माइनस 100, दैट विल बी 0, और मुझे सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव रखने हैं। दैट्स वाई जब मैं 100 नहीं ले सकता, ठीक है, तो उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस 100 को 100 प्लेस नंबर को अब सिंपली 1 प्लेस डाउन लाना पड़ेगा। 100 प्लेस से इसको 10th प्लेस बनाना पड़ेगा। 10th प्लेस बनाने के लिए मैं इस नंबर को 100 को सिंपली कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, 10th प्लेस के मैक्सिमम नंबर पे। 10th प्लेस का अगर मैं कोई भी नंबर सपोज करता हूं जहां पे मेरा सम जो है वो डिक्रीज ना हो, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्प्लिट 100 इंटू 80 एंड 20। ये दोनों मेरे 10th प्लेस के नंबर्स हैं। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों नंबर्स को दैट इज 8 और 20 को ऐड करता हूं तो दैट विल सिंपली गो टू 10, और मेरा नंबर जो है यहाँ पे लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं इस क्वेश्चन को ग्रेडली थिंक ऑफ कर सकता हूँ। मैं 100 को मैं ऐसे भी थिंक कर सकता था, 100 और 2 को एग्जाम्पल को मैं सिंपली क्या करता, 10 और 90 पे बना देता, ठीक है, या फिर 50 और 50 पे बना देता। सिंपल सी चीज है। ठीक है, जैसे कि यहां पे इनने देखो 10 और 90 पे बनाया, चीज वही है मेरी, कुछ भी बदला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तुम बना कुछ भी सकते हो, दैट दे आर सिंपली सेइंग देयर आर मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स, प्रिंट एनी ऑफ देम। ठीक है, ना अब मेन बात आती है कि सबसे पहले हमें कोई भी नंबर गिवन है, मान लो ये नंबर गिवन था 999999। ओके, अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये यू कैन से 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आई विल चेक इज कि मैं इससे 11 रेज 5 का कोई नंबर पे वैल्यू बना सकता हूं कि नहीं। ठीक है, मैं सिंपली ये चेक करूंगा, और अगर 11 रेज 5 का कोई नंबर मैं स्प्लिट करके बना सकता हूं तो मैं सबसे पहले तो वही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 11 रेज 5 की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी अपने n पॉजिटिव नंबर्स पे लानी ही लानी है। ठीक है, अगर मैं 11 रेज 5 का कोई भी नंबर नहीं बना सकता, आफ्टर दैट आई विल गो टू 11 रेज 4 एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू 11 रेज 3। ठीक है, इस तरह सीक्वेंस में, तो आई विल गो फॉर मैक्सिमम डिजिट नंबर फर्स्टली, और अगर मैं वो नहीं बना सकता आई विल सिंपली ब्रेक डाउन टू बाय 10 नंबर। ठीक है, देन बाय 100 नंबर। फाइन, ओके। नाउ इसके लिए कितने डिजिट नंबर है सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने सिंपली क्या चेक किया, ये कितने डिजिट नंबर है, 6 डिजिट। 6 डिजिट का मिनिमम पॉसिबल नंबर जो मैं इससे निकाल सकता हूं वो कितना हो जाएगा, सिंपली 1। ठीक है, मैंने सिंपली इससे क्या किया, मैंने ये इससे सबट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, फाइन। इसको इससे हटाने के बाद मेरे पास कितना नंबर बचेगा, सिंपली लेट्स जस्ट फाइंड आउट दैट। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं तो मुझे सबट्रैक्ट करने में आसानी होगी। अब मेरे पास ये नंबर बचा। ठीक है, मैंने एक n पॉजिटिव नंबर्स में ये नंबर दे दिया ऑलरेडी। अब मेरे पास ये नंबर बचा, मुझे इस नंबर में अगेन कितना डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6। मैं इसमें क्या अगेन इतना डिजिट नंबर निकाल सकता हूं, 6 डिजिट, देख लेते हैं। अगेन निकालो, 9 9 9 9 9 7। ओके, अब मेरे पास ये बचा। ठीक है, और मुझे रिमेनिंग नंबर्स जो भी बनाने हैं, ठीक है,
रिमेनिंग नंबर जो भी बनाने हैं वो एक सिंगल नंबर बनाना है, क्योंकि टोटल नंबर जो मुझे बनाने थे वो 3 थे, ठीक है, जिनमें से 2 नंबर्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो रिमेनिंग नंबर जो बनाने हैं 1 एंड टोटल सम कितना है, इतना। तो जब n इज इक्वल्स टू 1 ही है तो मैं ऑब्वियसली इसको स्प्लिट नहीं करने वाला और इसको कंप्लीट नंबर ये दे दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर, एक क्वाइट पॉसिबल आंसर ये 10 रेज 1 2 10 रेज 5 10 रेज 5 एंड 7 9 9 9 9 9, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ दिस सॉल्यूशन लाइक दिस। तुम ग्रीडली किसी भी सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से अगर तुम्हें एक चीज पॉसिबल पता चली होगी कि काइंड ऑफ रिकर्जन फॉलो कर सकते हो, जहां पे n इज इक्वल्स टू 1 तुम्हारा बेस केस तुम्हें मिल गया होगा। तुम क्या करोगे, सिंपली तुम्हें जो भी s मिलेगा तुम उस s को चेक करोगे कि तुम उस s से कितना डिजिट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बना सकते हो। जैसे ही वो नंबर बन जाएगा तुम उसको अपने कंप्लीट s से क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। सबट्रैक्ट करने के बाद अगेन तुम्हें एक s मिलेगा, तुम उस s से अगेन देखोगे तुम कितना मैक्सिमम डिजिट पॉसिबल नंबर बना सकते हो। जैसे ही वो नंबर तुमने बनाया तुम उस डिजिट को सबट्रैक्ट कर दोगे s से और नेक्स्ट पॉसिबल नंबर जो s की वैल्यू मिलेगी, ये तुम्हारी क्या है, s की अपडेटेड वैल्यू है सम की। फिर उससे बचे हुए नंबर बनाने लग जाओगे और तुम्हारा बेस केस क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 1, ओके। और सपोज तुम्हारा ये जो s था ये करेंटली 6 डिजिट था, ठीक है। दैट्स वाई तुमने क्या बनाया, 6 डिजिट नंबर बनाया। अब देयर इज अ पॉसिबल केस कि तुम 6 डिजिट नंबर नहीं बना सकते, देन व्हाट यू विल सिंपली डू इज यू विल गो फॉर 5 डिजिट नंबर, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबल केस तुम 5 डिजिट नंबर नहीं बना सकते, यू विल गो फॉर 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब तुम ये कब तक चेक करते रहोगे, यहां पे तुम्हारी मेन बात आती है कि तुम सबसे पहले 6 डिजिट नंबर देखोगे, 4 डिजिट नंबर देखोगे, फिर उसके बाद तुम ये देखो कि तुम्हें यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है 100, ओके। ये मेन तुम्हारी हाईलाइट थी। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा ये मैं अभी बताता हूँ। लेट्स जस्ट फर्स्टली गो टू द कोड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हम कोड पे जाके चेक करते हैं। हमें रिकर्जन लिखना था सिंपली, ठीक है। ये जो मेरा डिजिट फंक्शन है ये सिंपली क्या दे रहा है तुम्हें, सपोज n तुम्हारा था 999, तो ये तुम्हें मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट देगा, ठीक है। 3 डिजिट का मिनिमम पॉसिबल नंबर, सिंपली यही ये रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है। तो सपोज तुम्हारा नंबर 6 डिजिट था तो ये मिनिमम पॉसिबल 6 डिजिट नंबर तुम्हें देगा, जो तुम अपने s से हटा सकते हो और तुम्हारा रिमेनिंग s बच जाएगा, ठीक है, फाइन। अब तुम्हें सिंपली रिकर्जन फंक्शन लिखना है। रिकर्जन फंक्शन में तुमने 2 चीजें पास कर दी, फर्स्ट इज योर वैल्यू ऑफ सम एंड सेकेंड इज योर टोटल नंबर्स नीडेड, दैट इज n, ठीक है, फाइन। सबसे पहले तुम रिकर्जन में क्या लिखोगे, योर बेस केस, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1, ओके। मैंने थोड़ा जूम कर लिया। n इज इक्वल्स टू 1 तुम्हारा बेस केस हो जाएगा। जैसे ही n इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो मैं सिंपली टोटल सम रिटर्न कर देना, टोटल सम जो भी तुम बनाने वाले हो, ठीक है। अब तुम सिंपली चेक करोगे s माइनस डिजिट ऑफ s, डिजिट ऑफ s तुम्हें सिंपली क्या दे रहा है, टोटल डिजिट ऑफ s तुम्हें सिंपली क्या देगा, मिनिमम पॉसिबल n में जितने भी डिजिट्स हैं, ठीक है, s में जितने भी डिजिट्स हैं। सपोज s में तुम्हारे डिजिट्स हैं 3, तुम्हें 3 डिजिट का मिनिमम पॉसिबल नंबर देगा, दैट विल बी 100, ठीक है। तो तुम अब s से सिंपली क्या करोगे, 100 निकाल लो, फाइन। अब तुम ये क्यों देख रहे हो n-1 से बड़ा है कि नहीं, इक्वल और बड़ा होना चाहिए, बिकॉज सपोज तुम यहाँ पे 4th पॉजिटिव इंटीजर बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें टोटल पॉजिटिव इंटीजर बिल्ड करने हैं 6, ठीक है। तुम 4th बिल्ड कर रहे थे तो अब बचे हुए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे 2, ठीक है। तो तुमने जब s से 100 निकाला तो तुम्हारा मिनिमम सम जो रिमेनिंग है वो 2 होना चाहिए, ताकि जो तुम बचे हुए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स तुम जो बनाने वाले हो, ठीक है, वो 0 ना बने, वो एटलीस्ट 1 और 1 तो बने ही बने, ठीक है। दैट्स वाई n-1 से बड़ा होना चाहिए s माइनस डिजिट ऑफ s, और अगर ये n-1 से बड़ा है सिंपली जस्ट प्रिंट डिजिट ऑफ s, दैट इज मिनिमम पॉसिबल x डिजिट नंबर, ठीक है, एंड कॉल योर रिकर्सिव फंक्शन सॉल्व
s माइनस डिजिट ऑफ s, क्योंकि अब तुम्हारा रिमेनिंग सम अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एंड अब जो पॉजिटिव नंबर्स तुम्हें बनाने वो कितने हो जाएंगे, n माइनस 1, ठीक है, फाइन। अब इन केस अगर तुम जो x डिजिट नंबर बना रहे थे वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो यू विल गो फॉर वन लेस, दैट इज बाय 10 नंबर, एंड यू विल डू द सेम प्रोसेस, ठीक है। इन केस अगर बाय 10 नंबर भी नहीं बन पा रहा, देन यू विल सिंपली गो फॉर बाय 100 नंबर। अब मैंने ये चीज एल्स में क्यों लिखी है, यू कैन सिंपली चेक तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना है, 100, ओके। सो बाय s करने के बाद, डिजिट ऑफ s में बाय 100 करने के बाद तुम्हारा जो s का वैल्यू बचेगा वो विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन n माइनस 1, दैट्स वाई तुम्हें 100 से बाय 100 में ऑलवेज वो नंबर मिलने ही वाला है, ठीक है। सो आई गेस यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, you can ask me in comment section. I will explain you in brief again. Thank you guys for watching this video, and like this video and share this, subscribe this channel. Thank you guys for watching.